I coded into my mobile before buying a laptop. My coding journey was starting last year. Now I am a bit skeptical about the interview. I have a question. I'm selected. डीएस से My जावास्क्रिप्ट से क्यों नहीं करते हो? अगर मैं होता, मैं आपको हायर करना चाहता, अभी के लिए मैं कहूंगा ये काफी अर्ली है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ या क्या क्या कर रहा हूँ। अच्छा लगा मेरे को कि आपने मुझे इंसिस्ट किया इंटरव्यू लेने के लिए आगे। मैं तो सोच रहा था बीच में ही बंद कर दूं। आगे आपने बोला कि इंटरव्यू लेके तो देखो, तो आपने क्रैक कर गया। मेरी भी थिंकिंग आपने चेंज कर दी, तो उसके लिए भी अप्रिशिएशन है आपको। अगर आपको अप्लाई करना है ना इस मॉक इंटरव्यू के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। वहाँ पे मैं फॉर्म डालता रहता हूँ। मतलब बेसिकली हमारे 1-on-1 मेंटरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके भी मैं फॉर्म वहीं पे डालूंगा। और जो हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है उसके फॉर्म भी मैं वहीं पे डालता हूँ। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप चैनल। So, hey everyone, my name is Vans and I'm pursuing BCA from South University, which is located in Gango. And I'm exploring full stack development using Merna Stack and also practicing DSA using Java. And my coding journey was starting last year. Last year, when I passed 12th with bio. And when I realized my interest in technology, then I switched to math and I got admission in BCA. And initially, when I start coding, then I coded into my mobile before buying a laptop. So this is all about me. Very nice. It was a pretty much good intro. And what made you choose IT career? Because I'm thinking my interest in technology much greater to any biology or whatever. And when did you realize this? Why did you take biology then, if your interest was more in the technology? No, I realized that after 12 Ah, because okay. And what when I was what made you realize that? So I just want to uh, understand what made you realize that. in these days talking with my friend to admission where I can get an admission, and Hmm. I have two options to give BCA or uh, B Pharma. Got Then it. I B Pharma for uh, medicine, yeah. yeah Mhm. for medical. Okay, that was pretty much it about the intro. Now I am a bit skeptical about the interview because the question I prepared, you may not be able to solve it if you have just started the coding. I thought you have few years of experience, but you just told that you have just 1 year of experience in coding only. No, Hmm. let's try because How much in experience do you have in React? When did you start did React, coding in React? React like 20 days. That's why I uh, write in the Google form that I can write React, but I don't have many experience. Yeah. So I know basic. So, uh, आप अभी कौन से ईयर में हो? I'm in second year. Hmm. Let's check what you prepared, then see what happened. देखते हैं। थोड़ी देर ही करेंगे अगर आप नहीं कर पाए तो। अदरवाइज वी विल लीव, ओके। Okay. आपने वो वीडियो नहीं देखी थी क्या मेरी, जिसमें मैंने टाइटल में थंबनेल में डाला था रिक्वेस्ट टू फ्रेशर्स? हाँ देखी थी। मैं रात ही देख रहा था एक के लगभग रात 1 बजे। देन एक वो भी था ना वो टिकट काउंटर वाला प्रैक्टिस है। देन वो नहीं नहीं, एक था एक वीडियो आई डाली मीन थी ना मैंने, जिसमें एक बंदा आया था, वो
कोडिंग स्टार्ट ही करी थी उसने, 6 महीने हुए थे, फिर भी वो इंटरव्यू के लिए आ गया था। वो वाली वीडियो देखी थी क्या? नहीं, 6 महीने नहीं, शायद 8 महीने हुए थे। हाँ हाँ हाँ, है ना? मतलब हाँ 8 हुए वो, होंगे। हाँ वो वो देखी थी। रात ही देखी थी, हाँ। तो रात मैं यही देख रहा था। एंड एक वो टिकट काउंटर वाला देखा कि हाँ ये सोल्व कर, तो ट्राई किया। तो लगभग 2:30 के करीब हो गए थे। Then मैं उसको करके सो। हाँ, सो दिवाली सीजन चल रहा है, राइट? यस। सो मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि किसको मैं क्या गिफ्ट दूँ। ओके। ठीक है, सो मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि मैं अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का नाम लिख दूं उसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे नाम लिखिए किसी का, आप मेरा नाम लिख दीजिए ऋतिक, एंड अब एक और नाम ऐड करिए, अपना नाम ऐड कर दीजिए। बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ठीक है, मेरे को पता नहीं है मैं क्या गिफ्ट दूँ, किसको क्या गिफ्ट दूँ। ओके, सो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही असाइन गिफ्ट आप क्लिक करिए, असाइन गिफ्ट, अब देखिए ऑटोमेटिकली गिफ्ट असाइन हो गए। बट मान लेते हैं आपको, मुझे फायर क्रैकर नहीं देने हैं, ठीक है, आप कुछ और देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, शफल गिफ्ट पे क्लिक कर सकते हो। शफल पे क्लिक करते ही ये शफल हो जाएंगे, कोई नया गिफ्ट आ जाएगा हर एक बंदे के लिए। ओके। क्लिक करिए क्लिक करिए, हाँ ये तो ये देखो शफल हो दोनों गए। के चेंज। हाँ दोनों के चेंज। हाँ, अब दोबारा सफल करिए, शफल, शफल नहीं दोबारा हो रहा। करिए। हाँ, तो देखिए चेंज हाँ होते जा रहे हाँ हैं, हाँ। ठीक है। यही आपको करना है, यही आपको बनाना है। रिजेक्ट पे क्लिक करिए, रिजेक्ट पे क्लिक करके नो गिफ्ट असाइन आ गया। ओके, तो बताइए। इसका आप मतलब उस पे लोकली कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लोकली कर सकते हो। मीन्स अगर हम हम्म। दोनों को सेम गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। असाइन गिफ्ट पे क्लिक करके बस आपको गिफ्ट असाइन करना है, चाहे आप सेम करो चाहे आप डिफरेंट करो। शफल गिफ्ट पे क्लिक करके करंट वाला गिफ्ट हटा के कोई और गिफ्ट ला देना है, यही है। पहले से ही आप एक एरे बना सकते हो गिफ्ट्स का कि क्या क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं। ओके। एंड स्वीट्स, फिर डेकोरेशंस, फायर क्रैकर्स। वो इंडेक्स को उसके रैंडमली असाइन कर देंगे जब मैंने असाइन गिफ्ट पर एग्जैक्टली, क्लिक, है ना? हाँ एंड सफल गिफ्ट्स पर भी वही होगा कि इंडेक्स रैंडमली असाइन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट एक डिफरेंस है इन दोनों में कि अब आप असाइन गिफ्ट पे क्लिक करिए, हाँ। अब देखिए एरर आ गया कि गिफ्ट्स आर ऑलरेडी असाइंड। पर शफल में ऐसा नहीं होगा। ओके। तो उसके लिए हम शफल, एक वेरिएबल ट्रैक कर सकते हैं, मीन्स फर्स्ट और लास्ट वन, ऐसा कुछ। अगर हम रीसेट करते हैं तो वेरिएबल को फिर से फॉलो कर दें, मीन्स ऐसा कि हमने एक वेरिएबल बनाया कि गिफ्ट असाइन इक्वल टू फॉल्स से स्टार्ट हो, एंड व्हेन यूजर क्लिक टू असाइन गिफ्ट देन गिफ्ट असाइन हो जाएंगे एंड वो ट्रू हो जाएगा। तो व्हेन यूजर दोबारा से असाइन गिफ्ट पर क्लिक करेगा तो वो हाँ वेरिएबल ठीक है, ट्रू होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक सही है एरर सही है, मैसेज दिया है ना? कोई इशू नहीं है। और रीसेट पर क्लिक करते ही उसको भी रीसेट कर देंगे, मीन्स उसको फॉल्स पे कन्वर्ट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ओके। को गिफ्ट को बार बार चेंज नहीं करना है तो इसको यूज स्टेट नहीं देंगे, तो सीधा डिक्लेयर कर सकते हैं ना। क्या कह रहे हो? मीन्स ये जो गिफ्ट एरे है, तो इसको बार बार चेंज नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं ना, बिना यूज स्टेट के। हम्म, मतलब आप वो कह रहे हो कि जो हम देना चाहते हैं वो वाले ना हाँ गिफ्ट्स। मीन्स गिफ्ट्स को बार बार चेंज तो नहीं करना है ना एरे के अंदर, वो तो असाइन की बात होगी। अभी कर लीजिए, बाद में देखते हैं क्या कह रहे हो आप, मैं अभी समझ हाँ। नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके।
आप बॉम्ब गिफ्ट करोगे? अच्छा वैसे वाला बॉम्ब कह रहे हो? Yeah, सुतली बॉम्ब। yeah. Don't that bomb. अभी तक तो काफी अच्छा जा रहा Okay, है। let's see. Next button. When I user click to that button, which is submit, then this function will run. या हम्म व्हाई डिड यू राइट prevent default? To stop the form to auto submit. अच्छा ओके ओके जिससे उसको मैं ही हैंडल कर सकूँ डायरेक्टली सबमिट ना हो। ओके फॉर्म में ऑन सबमिट यू आर यूजिंग। ठीक है समझ गया। गॉट इट। हाँ First I console the value. It will come or no. यू नो ठीक है Hmm? एक गलती कर रहे हो आप। तो देयर इज अ Huh? मिस्टेक। Huh? यू हैव But टू गिफ्ट। हाँ यू हैव टू गिफ्ट एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स। यू जस्ट डोंट हैव वन फ्रेंड। ओके okay. मीन्स जितने भी हमारे पास फ्रेंड हैं सभी को देना है। हाँ एग्जैक्टली एक को ही दे रहे हो आप अभी तो। This is an array. नाइस यस ऐरे ही यूज करना होगा। आप कितने वीडियोस देख के आए हो पहले की? भाई मैंने दो की देखी भाई। ठीक है Actually, this is console is running or not. I'm just हाँ checking. सॉरी यू आर जस्ट चेकिंग इफ द कंसोल इज वर्किंग हाँ राइट। yeah. It's been a while I've used on submit on form, but still I will try. ये इशू शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि on submit में you will get the values of form instead of just one value. I may be wrong, I don't know. On submit मैंने कभी 5 साल पहले यूज किया होगा फॉर्म के अंदर। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू काम नहीं करेगा ऑन सबमिट पे। ऑन सबमिट आपको वैल्यूज देगा जो उसके अंदर है फॉर्म के अंदर। Okay. हम्म हाँ, working. अच्छा।
Means I directly assign the this input value to another variable because गॉट इट, हाँ ठीक है। हाँ समझ गया मैं। yeah, it's directly assign the input value to new friend because it's resetted. Yeah, ठीक है, समझ गया। नाउ इट शुड वर्क। yeah, I hope. हम्म I would say do हाँ, not rely so much on console log, okay? okay, बहुत ज्यादा console log लिख रहे हो, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखिए। okay, Have confidence on yourself, okay? okay. Have some confidence that you are writing the right code. Means when form is completed, then I reset the this new friend value. Empty. Yeah, nice, nice, nice. I use map function on all friends to define all the friends in the Hmm. list type. Yes. Element from
Don't focus more on showing the data, focus more on the functionality part, okay? अगर एक आधा एरो आपका छूट भी गया कोई इशू नहीं है, बट फोकस ऑन फंक्शनैलिटी। Okay, okay. एग्जैक्ट यूआई बनाना है ये जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी बनानी है ये जरूरी है। I got it. How much time we have? Okay, good question. I think 30 more minutes. 30 minutes. When I started, I am think it's 40 minutes. I didn't get you. Come again. In starting, I thought it is 40 minutes to clear the whole interview. So we started 20 minutes ago, right? Mm-hmm. So 20 minutes have already passed. See, focus on one functionality first, okay? दिमाग में ये मत बिठाओ कि आपको असाइन भी करना है, सफल भी करना है, रिजेक्ट भी करना है। फोकस ऑन वन एट अ टाइम। If you have any doubt for this math.random, you can Google it, okay? Even I don't know about the syntax and the working of this function. Okay, okay. So what are you trying to do now? To assign a gift to an element means an friend directly. Okay. Directly. I think it's okay. Okay. It's not a condition. आपने गिफ्ट की जगह हाँ फ्रेंड हाँ असाइन कर दी। वही नाम दे दिया। एक और इशू है, वापस जाइए उसके अंदर। आगे ऑल फ्रेंड भी तो लिख रखा है आपने, वो भी तो सही करिए। लाइन नंबर 30 ऑल फ्रेंड। यार आ गया फायर क्रैकर। This you have to do actually on click of a button, right? Na, remember? हाँ हाँ I'll So अभी तो ये automatically हो रहा है, but you have to click on a button to do this. नहीं ये डायरेक्टली नहीं हो रहा था बल्कि मैं एंटर दबा रहा था इसलिए हो रहा पता है, मुश्किल से 5 मिनट का कोड बचा है अब, अगर आपने कर दिया तो। रीसेट भी हो जाएगा, शफल भी हो जाएगा हमारा, वो भी हो जाएगा, असाइन भी हो जाएगा। 3 बटन बना दीजिए, तीनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। It is random. It's not working like that because see
when I enter a new friend, it is क्योंकि कोड called बार बार रन हो रहा है ना, uh, हर एक वैल्यू चेंज पे कोड रन हो रहा है, उसकी वजह से यू आर सीइंग डिफरेंट वैल्यूज। so we can convert this to an object, means array of object. वेरी नाइस। Hmm. I can directly assign here, not here, because it's run every time. सॉरी, I can directly assign here where form will submit. Then I directly assign the gift to a random gift and can नहीं वो तो even ठीक है, बट अभी हमारी फंक्शनैलिटी क्या थी? व्हाट वाज द फंक्शनैलिटी? फर्स्ट यू हैव टू ऐड अ पर्सन, देन यू हैव टू ऐड गिफ्ट। oh, गो बैक एंड उस पे जाइए, oh, कोड हाँ पे, कोड सैंडबॉक्स पे, समझ गए? हाँ 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 हम्म। So you have to move this functionality inside a function, and that function will be called by via a button. okay. This is I need to separate. Um, means I am assigning the functions to particular button. Okay. Hmm. Exactly. I can assign functionalities here.
Why? You have written reset, you have written shuffle. Where is the assign? Right? And so I write reset button 2 times. That's why it's happened. And that reset. Final functionality, Yeah, last time. I hope. last functionality. This is because assign function will run first time only. That's why. हाँ, ये- है ना? This is मतलब assign. आपको ये देखना है कि assign will only run if no gift is assigned to each of the friend, each of your friend. Okay. हाँ. तभी वो रन होगा, वरना नहीं होगा. EL एक array है, पता है ना? No, AL is an object. See? EL is an array. Oh, oh, my bad. समझ गए क्या? हाँ, हाँ, my bad. It is AL. Yes. Mm, then
I think it will work. Sorry? Means I think it will work. Yeah, it will work. Yeah, नाइस हाँ, काफ़ी जल्दी आपको याद आ जाता है, आपकी गलती। Like step. A is not defined. Where is the A? It's 20. Oh, gosh. Friend. हाँ, एक बार एरर देखना कहाँ पे आया है? लाइन All नंबर? friend. Math is not a function. Then 49 लाइन नंबर है। no, this is each child. ये तो की वाला है important. ये 49. एंड आप अभी 20 लाइन पे देख रहे थे। All friend don't. All friend is an array. Yeah. हम्म सो जब भी आप सेट कर रहे हो समथिंग इज रॉन्ग इन द रिटर्न ऑफ द डेटा दैट यू हैव टू फिगर आउट। गो अब in the assign function you have to figure out why There is is. it not setting the array। Oh, सामने ही है पता है एरर। oh, आई कैन सी इट क्लियरली। इट here सेज here is. आई डोंट नो बट Okay. Okay. the error is it's not a array। We have set friends. Yeah. Set friends. Let's do it. एरर तो पता चल गया आपको। Oh, solve. सही तो है। अब क्या इशू है? This is not working. No. Why- कैसे वर्क Madam, करेगा वो? आपने इसका कोडिंग लिखा है? नीचे जाइए। yes, suppose कहाँ लिखा है one. आपने कोड? क्या लिखा है आपने? गिफ्ट लिखा है। ऊपर क्या यूज किया आपने? If, दोबारा देखिए। those, yeah. And
खुशी देखिए चलते ही। क्योंकि ऑलरेडी असाइंड था तो इसलिए नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत हैंडल करिए। शफल गिफ्ट और रीसेट पे फोकस करिए। कॉपी पेस्ट ही करना है अब आपको। Sign. Yeah, it's working. परफेक्ट परफेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। ओके, फाइनली कर दिया आपने। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? I have a question. I'm selected. उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थोड़े मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस कोड। ओके, Okay. फर्स्ट पॉइंट, देखिए तीनों बटन्स की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम थी, राइट? एक में बस आपको रीसेट करना था, एक में असाइन करना था, और थर्ड वाले में आपको शफल करने थे। Okay. So तो we आप can तीनों का एक ही फंक्शन बना a सकते थे। component. हाँ. वी कैन क्रिएट जस्ट वन फंक्शन, उसी को रीयूज कर सकते थे आप पैरामीटर्स भेज भेज के। ओके, एक बार वापस कोड पे जाइए। ऊपर जाइए। आपने ये चेक कर रहे हो कि हैंडल असाइन में आपने ये चेक किया है कि इफ नोट असाइन, राइट? Yeah. ऊपर जाइए थोड़ा। इफ नोट इज असाइन यूज किया है, इसकी जगह आप एक और अप्रोच यूज कर सकते थे। उसमें क्या होता, उसमें आप एरे को वो करोगे, इटरेट करोगे बेसिकली। जैसे ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एरे है, उसमें आप देखोगे क्या कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गिफ्ट असाइन नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला तो उसमें आप असाइन कर दोगे। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आप इसको रन नहीं कराओगे। We can समझ गए? we can make a condition which is वो- if हाँ, gift is not assigned then. वो बेटर अप्रोच रहती, क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे पास दो असाइन हो गए बट तीसरा असाइन नहीं है, तो इस वाली अप्रोच से क्या होगा, वो असाइन ही नहीं होगा कभी भी, राइट? और शफल तो क्योंकि हमेशा शफल ही करेगा उसको। ओके, एक और कंडीशन जो आपने मिस कर दी शफल में, शफल आप तब तक नहीं करोगे जब तक सारे असाइन नहीं है, वो आपने मिस कर दी, ठीक है। ऊपर जाइए थोड़ा। मैं और देख रहा हूँ और कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्या। सेट न्यू फ्रेंड। ओके, आपने न्यू फ्रेंड यूज किया, वो उसके लिए किया था, उसकी वैल्यू सेट करने के लिए, फिर उसको पुश किया, ठीक है। हाँ, एक और है हमारे पास, नीचे जाइए थोड़ा। लाइन नंबर 26, लाइन नंबर 26, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने की नीड ही नहीं थी, आप डायरेक्ट ईएल रिटर्न कर सकते हो। पता नहीं क्यों आपने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है, आप डायरेक्ट ईएल रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सेम केस है हमारा 28 लाइन पे, आप डायरेक्ट एरे रिटर्न कर सकते हो, ट्रिपल डॉट यूज करने की कोई नीड नहीं है। स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, इसको यूज करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आप इसको रिटर्न कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक एरे है। ओके, Okay. No, ठीक है, I थोड़ा it, नीचे जाइए। it will not work. This is, इट वर्क करेगा यार, can I हटाओ check? इसको। हाँ हाँ, इसको हटाओ। अरे ब्रेसिस को, उस ब्रैकेट्स को हटाओ ना। हाँ, अब न्यू ए आर आर लिख दो, ऊपर भी ईएल पे सिर्फ ईएल रिटर्न करो। यप, हाँ अब ठीक है, अब देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मैप जो हमारा फंक्शन होता है वो एरे रिटर्न करता है,
सो एरे की वैल्यू रहती है उसके अंदर। ओके, हाँ वो न्यू मतलब एरे का रिटर्न टाइप होता है तो एरे ही रिटर्न हो जाता है। हाँ वो न्यू एरे ब्रेक होता है। हाँ, अब नीचे जाइए थोड़ा और देखते हैं कोड को। हम्म, ओके, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ही फंक्शन यूज कर सकते थे। नीचे जाइए और हम आते हैं अब। फॉर्म आपने यूज किया है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। ये फॉर्म मैंने उसके डिव आपने अच्छे से यूज किया इसकी वैल्यूज निकाल है। के बाकी बाकी कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सब अच्छा था। अब आते हैं वर्डिक्ट पार्ट पे। ओके, क्या मेरे को अच्छा लगा क्या बेकार लगा उस पर आते हैं। पहला पॉइंट, आप सोच पाए, सबसे पहली बात तो ये अच्छी थी। आप पहले बता भी रहे थे कि आप क्या सोच रहे हो, बहुत अच्छे थे। आप बहुत ज्यादा बार फंसे हो, पता है, ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। आप बहुत ज्यादा बार फंसे हो, पर ऑलमोस्ट 90% आप खुद ही उसको रिजोल्व कर गए। आपको खुद ही पता चल गया कि क्या इशू था। ठीक है, सो ये एक पॉजिटिव नोट भी है, बट क्योंकि आप इतनी ज्यादा बार फंसे तो थोड़ा नेगेटिव भी चला जाता है। अब उस केस में मैं बताता हूँ क्या। तो जनरली क्या होता है, आपको अपने कोड पे भरोसा रहता है। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर कोड। वो आपके अंदर नहीं है अभी। यू वर ट्राइंग हिट एंड ट्राई, कंसोल लॉग लगा दिया, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लिया, एरे यूज कर लिया, जेसोन जेसोन कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, हिट एंड ट्राई कर रहे थे बस आप। ओके, थोड़ा भरोसा रखिए अपने कोड पे, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखिए वो कि मैं सही कोड लिख सकता हूँ वो उसमें। शायद कुछ इस ज्यादा ट्राई कर रहे थे आप। नहीं, वो शायद इसलिए हुआ कि मैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में न्यू हूँ, क्योंकि मैं जावा यूज करता हूँ बेसिकली डीएसए के लिए, तो शायद। हाँ, और आप, मैंने ऐसा कुछ रियलाइज भी किया था, पर आप उसको क्यों यूज करते हो जावा को, जावास्क्रिप्ट से क्यों नहीं करते हो, अगर आपको इसी फील्ड में आना है। डीएसए एग्जैक्टली, डीएस से, नहीं, जावास्क्रिप्ट से क्यों नहीं करते हो। मैंने शुरू जावा से ही किया था। मैंने शुरुआत में डीएसए किया था 5 to 6 month यूजिंग अ कोर्स। ठीक है, मैं नाम नहीं दूंगा। एंड उससे जावा, शुरू में जावा पढ़ा, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पे आया था, समझ इसलिए। गया, तो ठीक है फिर तो। तो मुझे लगा आप दोनों एक साथ कर रहे हो, पर ठीक है। नहीं, अब आप इस पे आ चुके हो ना, तो कोई नहीं, इस पे फोकस करिए अब पूरा। नहीं, हाँ, वर्डिक्ट पार्ट देखो, अगर मैं होता, मैं आपको हायर करना चाहता, अभी के लिए मैं कहूंगा ये काफी अर्ली है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ या क्या क्या कर रहा हूँ। ये क्योंकि अर्ली है अभी आपके स्टेज में, इसलिए शायद मैं आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता। इंटरव्यू काफी सही था। ओके, बहुत ही अच्छा गया है। कुछ पॉइंट्स है बस यही कि आप हिट एंड ट्राई ज्यादा कर रहे थे, और कुछ ज्यादा ही आप प्रॉब्लम में फंस रहे थे। ओके, आगे सॉल्यूशन ला रहे थे आप, पर कोई नहीं। पर पहले ही प्लेस में ट्राई करो कि आप 2-3 बार फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसमें बहुत ज्यादा बार फंसे हो, इस कोड में जब आप लिख रहे थे। ठीक है, तो आप सोच रहे थे, आप बता रहे थे, बहुत अच्छा था। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा था कि अभी आपने क्योंकि स्टार्ट ही किया, आप नहीं कर पाओगे। बट अच्छा लगा मेरे को कि आपने मुझे इंसिस्ट किया इंटरव्यू लेने के लिए आगे। मैं तो सोच रहा था बीच में ही बंद कर दूं। आगे आपने बोला कि इंटरव्यू लेके तो देखो, तो आपने क्रैक कर गया। मेरी भी थिंकिंग आपने चेंज कर दी, तो उसके लिए भी अप्रिशिएशन है आपको। ओके, हाँ, टेकिंग सो मच हेल्प हो गया, नॉट थिंकिंग बिफोर कोडिंग। हम्म सोचने से पहले कोड नहीं कर रहे थे, बेसिकली इससे मेरा वही मतलब था जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि आप हिट एंड ट्राई ज्यादा कर रहे थे, कि ये नहीं हुआ तो वो चल जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो चल जाएगा। अभी जो आपकी पोजीशन है बिल्कुल सही है। एक लास्ट पॉइंट और आता है, वो भी बताऊंगा, जो सबसे मेन है आपके वाले केस में। ठीक है, अभी जो पोजीशन आपकी बहुत सही है, ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए। तो जब आपको इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, आप ऑब्वियसली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आता है, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट, इंग्लिश। बहुत प्रिपेयर करना होगा आपको। आपने कुछ लास्ट मॉक इंटरव्यू देखा भी होगा मेरा, एक एक कैंडिडेट को मैं काफी बार कह रहा था इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। हाँ, आप कर रहे थे, काफी अच्छा था, उसका वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जैसा आप हिंदी में कर रहे थे। ओके, ओके, आप ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको एग्जैक्टली वो टर्म्स नहीं पता है। आपको वो टर्म्स ढूंढनी होगी क्या होती है जब किसी कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक एरे है हमारे पास, उसके हम एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं या फिर जाते हैं उसके एक एक एलिमेंट पे। ओके, वहां पे एक टर्म आती है इटरेट। हाँ, ठीक है, right, जनरली मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, वी हैव एन एरे, वी विल इटरेट थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट, देन वी विल रिटर्न
द अपडेटेड लॉजिक और अपडेटेड रेस्पॉन्स। ओके, Okay. आपके केस में क्या था वो, अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आप ऐसे कर रहे थे कि वी हैव एन अरे, वी विल गो एलिमेंट वाइज एंड देन वी विल डू समथिंग एंड रिटर्न, ऐसा बोल रहे थे। Mhm. ठीक है, Mhm. सो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा अपने एक्सप्लेनेशन पे। एग्जैक्ट टर्म्स आपको ढूंढनी होगी, क्या क्या होती है। ट्रिपल डॉट वाला जो आता है उसका स्प्रेड ऑपरेटर होता है, एरे हो गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एग्जैक्ट टर्म्स ढूंढिए इंग्लिश में क्या क्या होती है, वो आप इंटरव्यू को बताइए। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाइए। You can see my screen. हाँ, आई कैन सी योर स्क्रीन। नाउ स्क्रॉल अप। हाँ, एक्सप्लेन मी दिस हैंडल असाइन। ओके, नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। Means when user click to assign button, then first this condition will check is assign value is true or false. Means it is first time to assign the values or it is not first time like that. हाँ, सो And एग्जैक्टली यही इशू है, यही इशू है। आपने जो अभी बोला मैं समझ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। ठीक है, हो सकता है इंटरव्यूअर ना समझ पाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा अच्छे अच्छे वर्ड्स लाइए। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे, वी हैव अ फंक्शन whenever assign button is clicked, this will be called, and whenever this is called we will check for a condition that will basically check if the items are have already assigned or not. Sorry, gifts have already assigned to if the items or not. Okay, and then we will iterate through each of the element and we will assign random gift to them. That's the purpose of this handle assign function. Okay, so ऐसे एक्सप्लेन करिए थोड़ा अच्छे से। आप अभी ऐसे बोल रहे थे, इफ दिस कंडीशन चेक और नॉट देन वी विल डू दिस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में आप थोड़े वर्ड्स मिस कर जा रहे हो। वो वर्ड्स आपको सीखने होंगे कि कोडिंग में lack हम of कैसे कहते हैं। सो देखिए, मेन आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है टेक में। सही है, मस्त है एकदम। इंग्लिश पे फोकस करिए बस। मेन फोकस आपका पहला इंग्लिश ही रहेगा, उसके बाद आपका क्लीन कोड रहेगा, जो फ्रेशर से वैसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। this, ठीक है, हाँ, ये ओके, जो आपका कोई क्वेश्चन, जितनी भी कोई थोड़ी सवाल? बहुत इंग्लिश है ये भी मेरे फ्रेंड की वजह से है, क्योंकि उसके साथ में असल में कोड करता था रात में, तो ज्यादातर टाइम हम हम्म, इंग्लिश में बात करते थे और उसको पता था मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो मुझे बहुत अच्छा है इंग्लिश में। तो वरना इंग्लिश, काफी अच्छा है। नहीं, मतलब मैं समझ पा रहा था, पर हो सकता है कोई और ना समझ पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा फोकस करना होगा। ऐसा नहीं था कि आप समझा नहीं पा रहे थे, मुझे सारा समझ में आ रहा था जो आप समझा रहे थे। पर फिर इश्यू वही रहता है कि आपको एग्जैक्ट टर्म्स भी आनी चाहिए। आपको आगे कंपनी में जाके काम करना है तो किसी और के साथ भी काम करना हो सकता है वो इंडिया का ना हो, बाहर का हो। तो उस फिर ये सब सिनेरियोज आ जाते हैं, तो इसलिए आपको and थोड़ा तो I प्रिपेयर have करना होगा। one